Hello and welcome, my dear friends. Good morning to one and all. This is once again your friend, philosopher, and guide, Prabhat Sharma, your English teacher, with you with yet another lesson from First Flight, the textbook in English for class 10th. We move on to lesson 7, Glimpses of India. And first part of that lesson is a baker from Goa. So, a baker from Goa, which is the first part of this lesson, is a pen portrait of a traditional Goan village baker who still has an important place in his society. Please take out page number 85. Everyone, got it? Page number 85. And I shall start the reading of the lesson. Please pay attention. Page 85. Open your books. The First Flight textbook in English for class 10. Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days. The Portuguese and the famous loaves of bread. Those eaters of loaves might have vanished, but the makers are still there. We still have amongst us the mixers, the molders, and those who bake the loaves. Those age old, time tested furnaces still exist. The fire in the furnaces has not yet been extinguished. So, the third and the jingle of the traditional baker's bamboo heralding his arrival in the morning can still be heard in some places, and maybe the father is not alive, but the son still carries on the family profession. These bakers are, even today, known as Padar in Goa. During a childhood in Goa, the baker used to be a friend, companion, and guide. He used to come at least twice a day. Once, when he set out in the morning on his selling round, and then again when he returned after emptying his huge basket. The jingling thud of his bamboo woke us up from the sleep, and we ran to meet and greet him. Why was it so? Was it for the love of the loaf? Not at all. The loaves were bought by some Pasquin or Bastine, the maid servant in the house. What we longed for were those bread bangles which we chose carefully. Sometimes it was sweet bread of special make. The baker made his musical entry on the scene with the jack jack sound on his specially made bamboo staff. One hand supported the basket on his head, in the other bangled the bamboo on the ground. He banged the bamboo on the ground. He would greet the lady of the house with good morning and then place his basket on the vertical bamboo. Wickets would be pushed aside with a mild rebuke and the loaves would be delivered to the servant. But we would not give up. We would climb a bench or a parapet and peep into the basket. Somehow I can still recall the typical fragrance of these loaves. Loaves for the elders and the bangles for the children. Then we did not even care to brush our teeth or wash our mouths properly. And when and why should we? Who would take the trouble of plucking the mango leaf for the toothbrush? And why was it necessary at all? The tiger never brushed his teeth.
Hot tea could wash and clean up everything so nicely after all. So we move on to the next page. Page number 87. The marriage gifts are meaningless without the sweet bread known as bull. That as a party or a feast loses its charm without bread. Not enough can be said to show how important a baker can be for a village. The lady of the house must prepare sandwiches on the occasion of her daughter's engagement. Cakes in Pauline are a must for Christmas as well as for other festivals. The presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential. The baker, or bread seller of those days, had a peculiar dress known as kabai. It was a single piece long frock reaching down to the knees. In our childhood, we saw bakers wearing a shirt and trousers which are shorter than the full length ones and longer than the half pants. Even today, anyone who wears a half pant which reaches just below the knees invites the comment that he is dressed like a patter. The baker usually collected his bills at the end of the month. Monthly accounts used to be recorded on some wall in the pension. Baking was indeed a profitable profession in those old days. The baker and his family never stopped. He, his family, and his servants always looked happy and prosperous. Their plump physique was an open testimony to this. Even today, any person with a jackfruit like physical appearance is easily compared to a baker. So, this is all about a lesson. इसमें 3 स्टोरीज है जिसमें से आज मैं पहला स्टोरीज आपको डिस्कस करूंगा, वो भी फुल एक्सप्लेनेशन एनिमेशन के साथ, और बाकी का 2 स्टोरी है वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। तो पहला स्टोरी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इंडिया में बेकरी सबसे ज्यादा फेमस कहाँ है? चलो आपको ऑप्शन देता हूँ, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तर प्रदेश, गोवा या उत्तराखंड। आंसर मुझे लगता है आपने सोच लिया होगा, पर सही आंसर जो है वो है गोवा। पता नहीं आप में से कितना का सही है, तो नीचे कमेंट करो। तो स्टोरी कुछ ऐसे शुरू होती है। इस चैप्टर के जो पोएट है लुकियो रॉड्रिगस, उनके जो एल्डर्स है उन्होंने उन्हें कुछ बताया था गोवा के बारे में, समथिंग एक्स्ट्रा स्पेशल, जिसकी वजह से ये स्टोरी हमारी बुक में ऐड हुआ है और हमें ये स्टोरी पढ़ना है और बोर्ड में जाके एग्जाम देना है। तो उन्होंने क्या भौंका था, तो चलिए पढ़ते हैं। गोवा में कई सारे विलेजेस है और उस विलेजेस में बेकर्स का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। गोवा में कई साल पहले एक पोर्टुगीज का राज था, यानी कि गोवा एक पोर्टुगीज स्टेट था, और उस स्टेट में जो बेकर्स थे, जो ब्रेड बनाते थे, वो लोग बहुत ही ज्यादा फेमस थे। तो यहाँ पे ये जो पोएट है, उनके जो एल्डर्स है, वो बोल रहे हैं कि लोस को खाने वाले, उस समय ये जो ब्रेड्स थे, इन्हें खाने वाले अब तो जिंदा नहीं होंगे, वैनिश हो चुके होंगे, पर अभी भी यहाँ पे जो बेकर है वे अभी भी यहाँ पे काम करते हैं और अभी भी इनके बेकरी में आग जल रही है जहाँ पे लोफ्स ऑफ ब्रेड बन रहे हैं। अभी तक फायर एक्सटिंग्विश्ड नहीं हुआ है, यानी कि वहाँ पे आग नहीं बुझी है। अभी तक यहाँ पे ब्रेड बनाया जा रहा है और बेकर्स अभी भी काम कर रहे हैं। समय जो बेकर्स थे वो थर्ड और जिंगल जैसी साउंड निकालते थे। थर्ड मतलब थोड़ा कठोर टाइप साउंड निकालते थे। वो बहुत ही ट्रेडिशनल बेकर हुआ करते थे और साथ में अपने बगल में बैम्बू भी रखते थे, बैम्बू स्टिक, जिससे वो आवाज निकालते थे और हर दिन सुबह में उस रास्ता से जाया करते थे। हाँ, हो सकता है अब वो बेकर्स जिंदा ना हो, पर उनके बेटे, उनके सन्स और उनके पुश्तों अभी भी बेकरी चला रहे होंगे। और अभी भी इन बेकर्स को गोवा में पैडर कहा जाता है। पैडर जो था बेकर्स को बोला जाता था, खासकर पोर्टुगीज लोग बेकर्स को पैडर बोलते थे। अब पोएट के जो एल्डर हैं वो उन्हें बता रहे हैं कि जब वे छोटे थे तो वो जो बेकर था
वो वहाँ से हमेशा आया करता था और जाया करता था। और वो बेकर जो था वो बहुत ही अच्छा फ्रेंड बन गया था उनका, बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्रेंड। और वो जो बेकर था वो हर दिन 2 बार आया जाया करता था। मतलब एक बार तो सुबह में वो जाया करता था जब उसे अपना सामान बेचना होता था, और दूसरी बार जब वो शाम में वापस लौटते हुए आता था जब उसका बास्केट खाली हो जाता था। और जब वो बेकर अपनी बैम्बू स्टिक से जिंगलिंग और थर्ड साउंड निकालता था तो हमारी नींद खुल जाती थी और हम तुरंत उठ के दौड़ जाते थे और उसके पास चले जाते थे ताकि हम उसे ग्रीट कर सके, यानी कि थैंक्स या धन्यवाद जैसा कुछ बोल सके। तो अब एल्डर्स सोच रहे हैं क्या हम उस बेकर के पास इसलिए दौड़ के चले जाते थे क्योंकि हमें लोफ्स की लालच थी, हमें ब्रेड खाने की जल्दी थी, पर वो फिर खुद को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। करे नहीं, वो कोई और ही रीजन था। पोएट के एल्डर्स बता रहे हैं कि उनके उनके भी जो एल्डर्स थे वही उन्हें ब्रेड लेने नहीं जाने दिया करते थे। एक्चुअली में उनके घर में जो मेड सर्वेंट होती थी वो जाती थी ब्रेड को लाने, और जब वे बच्चे जाते थे तो वो स्पेशली ब्रेड चुन के लाते थे, और वो ब्रेड लाते थे जो कि गोल शेप का होता था, क्योंकि वो जो गोल शेप का रहता था वो एक स्पेशल काइंड ऑफ ब्रेड था और वो काफी टेस्टी लगता था, स्वीट लगता था। और उस वक्त जो मेड सर्वेंट हुआ करती थी उसे पास्किन और बेस्टाइन भी कहा जाता है। उस समय जो बेकर्स थे वो एकदम म्यूजिकल एंट्री मारते थे सुबह में हमारे घर से जाते वक्त, क्योंकि वो झैंग झैंग साउंड प्रोड्यूस करते थे अपनी बैम्बू स्टिक से। और फिर वो जब आते थे तो उनके हेड में बास्केट रहा करता था, और एक हाथ से वो अपने बास्केट को पकड़ते थे और दूसरे हाथ से अपने बैम्बू स्टिक को जो कि ग्राउंड में लगा हुआ रहता था ताकि वे आवाज कर सके, झैंग झैंग। और वो बेकर्स जैसे ही हमारे घर के पास आते थे और उतरते थे, अपने सारा सामान नीचे रखते थे, तब वो सबसे पहले हमारी जो औरतें होती थी घर की उन्हें विश करते थे, कहते थे गुड मॉर्निंग। और उस समय हम जो बच्चे थे हम जबरदस्ती उस बेकर के पास जाना चाहते थे, पर हमें ऐसा नहीं करने दिया जाता था। तब हम चुपके से साइड से जाके जो छोटी दीवार होती थी वहां से पीप करते थे, झांक के बेकर्स को देखा करते थे। पता नहीं ऐसा क्यों। पोएट के एल्डर्स बता रहे हैं कि हमें वो दिन बहुत ज्यादा याद आती है, और हमें ये भी याद आती है जब हमें लोफ्स मिलता था तो हम तुरंत उसे खा लेते थे सुबह सुबह बिना ब्रश किए हुए। यार रियली बिना ब्रश किए हुए कैसे खाते थे? फिर पोएट के जो एल्डर हैं वो बता रहे हैं कि ब्रश करना बहुत ही हार्ड और मुश्किल काम होता था उनके लिए। वाह, ऐसा ऐसा आदमी भी, क्या बोलूँ अब पोएट के एल्डर्स बोल रहे हैं कि ब्रश करने के लिए उन्हें जो ट्री के ब्रांचेस होते थे उसे तोड़ना पड़ता था, छोटे छोटे ब्रांचेस को, और फिर उससे लीव साइड किया जाता था। तो जिन्हें नहीं पता मैं बता देता हूँ, उस समय के लोग दतवन दतवन जैसे दातुनों का इस्तेमाल करते थे ब्रश करने के लिए। उस समय उनके पास हमारी जैसी टूथब्रश नहीं थी। और इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए वो जो एल्डर्स थे वो बोलते हैं, हालांकि उस समय वो छोटे थे तो वो ये एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि टाइगर जो होता है वो कभी ब्रश नहीं करता, पर फिर भी उसके दांत कितने अच्छे होते हैं। और फिर वो बच्चे कह रहे हैं कि इससे बढ़िया हम चाय क्यों ना पी ले, चाय पीने से हमारी दांत ऑटोमेटिकली पूरी क्लीन हो जाएगी। इस बात पे तो यार ये जी बनता है। पोएट के एल्डर्स बोल रहे हैं कि गोवा में जब भी मैरिज हुआ करता था तो अगर कोई मैरिज में एक बॉल ऑफ ब्रेड ना मिले तो वो मैरिज जो था वो मीनिंगलेस होता था, यूजलेस होता था। और अगर किसी की बेटी की एंगेजमेंट होती थी और उस दिन अगर कोई केक्स ना दे और साथ ही साथ ब्रेड की डिशेस ना दे तो वो एंगेजमेंट भी यूजलेस होता था। और क्रिसमस के टाइम में तो केक्स और कई सारे ब्रेड की डिशेस बनाए जाते थे। और इसी बात से हमें ये पता चलता है कि वो जो बेकर्स थे गोवा में उनका कितना इम्पोर्टेंस था। और उस समय के बेकर्स अपनी नी तक एक सिंगल ड्रेस पहनते थे और उस ड्रेस का नाम था कबाई। कबाई कबाली कबाई कबाली, अच्छा छोड़ो आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली वो जो ड्रेस पहनते थे वो एक फ्रॉक हुआ करता था जो कि नीज तक आता था। अगर आपको जानना है कि वो कितना बड़ा होता था तो आप अपने 3/4 पैंट को ले लीजिए जो आपके नीज तक आता था, तो वही 3/4 पैंट और शर्ट के साथ एक सिंगल ड्रेस। और अगर इस तरह का ड्रेस कोई भी पहना हुआ दिखता था तो हम उसे बेकर समझते थे, यानी कि पैडर। तो मैंने आपको बताया पैडर किसे कहते हैं। पैडर उसे कहते हैं उस समय जब बेकर्स को पोर्टुगीज ने नाम दिया था, वो था पैडर। उस समय जो बेकर्स होते थे वो अपनी सैलरी बोल रहा हूँ, वो अपनी बिल मंथ के एंड में लिया करते थे।
और हमारे जो एल्डर्स होते थे, मतलब एल्डर्स के जो एल्डर्स होते थे, वो वॉल में पेंसिल से लिख दिया करते थे कि कितना पैसा हुआ। जैसे हम अभी अपनी दूध की बिल करते हैं और हर महीने के लास्ट में हमें देना पड़ता है, उसी तरह से उस समय गोवा में ब्रेड की बिलिंग होती थी। वाओ, काश मैं उस समय वहां होता। पढ़ते हैं अपने लास्ट पैराग्राफ की तरफ। तो आप लोग को लास्ट पैराग्राफ भी पढ़ना है। बहुत सारे लोग तो भूल गए होंगे कि लाइक सब्सक्राइब करना है, बहुत सारे लोग किए भी नहीं होंगे, शेयर तो दूर की बात। तो फिर से एक बार रिमाइंडर दे दे रहा हूँ। चलो क्या कर सकता हूँ, और तो कुछ कर नहीं सकता। तो चलो लास्ट पैराग्राफ बताता हूँ। बेकिंग जो था ओल्ड डेज में, उस समय बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस था, उससे बहुत ही कमाई हुआ करती थी, खासकर गोवा में। और खासकर जो बेकर्स हुआ करते थे वो बहुत ही मोटे हुआ करते थे, और बेकर्स, उनके सर्वेंट और उसकी फैमिली हमेशा खुश रहते थे और हमेशा धनी रहते थे, और उन्हें कभी भी भूखा नहीं देखा जाता था। वो हमेशा पेट भर के खाए हुए दिखते थे, और वे एकदम जैकफ्रूट यानी कि कटहल जैसा दिखाई पड़ते थे। और अगर कोई भी आदमी कटहल जैसा दिखता था तो लोग उसे बेकर समझते थे। तो दोस्तों, मेरे इस कटहल से भी सुंदर चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और इससे पहले